हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वॉच दिस वीडियो completely to understand everything well. We will study about resources, types of resources, development of resources, resource planning in India, land resources, land utilization, land use pattern in India, land degradation and conservation. What is resource? Everything available in an environment which can be used to satisfy our needs is called resource. Resource वो चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। On the basis of origin, resources can be divided into two parts, biotic and abiotic. Resources which are obtained from biosphere and have life, वो resources जिनमें जान होती है उसे हम biotic resources बोलते हैं। For example, human being, flora and fauna. The resources which are composed of non-living things and don't contain life, वो resources जिनमें life नहीं होती उन्हें हम abiotic resources बोलते हैं। For example, rocks, metals, soils, minerals. On the basis of exhaustibility, resources are of two types, renewable resources, non-renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process are called renewable resources. ये वो resources होते हैं जिनको हम reproduce या renew कर सकते हैं, जैसे solar energy, wind energy and hydro energy. Non-renewable resources, the resources that cannot be renewed or reproduced immediately. Once they are exhausted, they takes millions of years to reproduce are called non-renewable resources. ये वो resources होते हैं जिनको reproduce होने में बहुत टाइम लगता है और अगर एक बार ये समाप्त हो गए तो वापस millions years लग जाते हैं इनको प्राप्त करने में, जैसे metals, fossil fuels, etc. On the basis of ownership, resources are of four types. Individual resources, the resources which are owned privately by individual are called individual resources. ये वो रिसोर्स हैं जो एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, हाउस, कार एटसेट्रा. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्स होते हैं जो कम्युनिटी के सारे व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एटसेट्रा. National resources, all the resources which are under the control of union government are called national resources. National resources में कंट्री के सभी तरह के रिसोर्सेज शामिल हैं. इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज भी आते हैं. कंट्री के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितना भी वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, इनफैक्ट कंट्री के ओशन का कुछ एरिया भी इसमें शामिल है. और कंट्री के कोस्ट लाइन में 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22.2 मीटर का एरिया जिसे हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, वो भी कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज में आता है. इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती हैं. ओशंस के रिसोर्सेज जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 माइल्स यानी कि 370.4 किलोमीटर के बाहर आते हैं, वो सारी की सारी इंटरनेशनल रिसोर्स का पार्ट है. कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता. On the basis of exhaustibility, resources are of two types, renewable resources, non-renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process are called renewable resources. ये वो resources होते हैं जिनको हम reproduce या renew कर सकते हैं, जैसे solar energy, wind energy and hydro energy. Non-renewable resources, the resources that cannot be renewed or reproduced immediately. Once they are exhausted, they takes millions of years to reproduce are called non-renewable resources. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिप्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है और अगर एक बार ये समाप्त हो गए
तो वापस मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इनको प्राप्त करने में, जैसे मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा। On the basis of status of development, resources are 4 types. Number 1, potential resources. ये वो रिसोर्स होती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया तो है बट अभी हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, बट वी आर नॉट यूजिंग देम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। Developed resources, the resources which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization and they are currently used by humans. Such resources are called developed resources. ये वो रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी का क्वालिटी का हमें अंदाजा है एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग देम एट प्रेजेंट। थर्ड वन इज स्टॉक। स्टॉक वो चीजें हैं एनवायरनमेंट में जिनमें पोटेंशियल यानी क्षमता है हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है एंड जो हाइड्रोजन है वो एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अभी हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे। रिजर्व्ड वो भंडार हैं जिनको हमने बचा के रखा हुआ है। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी, इनको हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर सकते हैं बट वी डोंट यूज दैम, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे क्योंकि वी केप्ट दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमने उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल कर रखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज इट फुलफिल आर नीड्स, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनफैक्ट लोगों को ये लगने लगा कि रिसोर्सेज हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने इनका लापरवाही से प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, यू हैव टू वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।